Welcome to the Fundamentals of CSS3. This course is designed to teach you how to use CSS to take your web pages to the next level. Before you proceed with this course, please make sure that you have already completed the HTML5 course. So if you recall, when we learned HTML, Hypertext Markup Language, it is used to create the structure of all web pages. If you are interested in developing websites and you have already learned HTML, its cousin CSS is the second language you need to learn. My name is Hira Khan and I'll be your instructor. I'm the co-founder, Chief Operating Officer and Cloud Native Specialist at PanaCloud Private Limited. I'm also the Director of Women Empowerment Division and Lead Faculty for the Cloud Native Specialist Program at the PIAIC. I have been developing web and mobile applications and teaching others how to develop them for over 10 years. I have trained thousands of students at various institutions and universities. In this course, I'll share a lot of my experience and help you succeed in building your own websites. In this course, we'll go through the latest standards when using CSS3 with HTML5. So you don't need to know any other programming languages. To follow along with the exercises in this course, all you will need is Visual Studio Code and a web browser. As you have already experienced with the HTML5 course, each video focuses on a particular functionality, followed by a practical video that demonstrates how to use that functionality. We'll continue to use the same methodology for this CSS3 course. By the end of this course, you will know how HTML and CSS work together to build websites. Let's get started. In HTML, we learned the different HTML tags that are used to create the web pages and how to navigate from one page to another and how to create forms, tables, etc. So using only HTML, we learned how to create the structure of the web pages and also how to create links and navigate around different pages. HTML is a prerequisite for learning CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet. और कोई भी वेब पेज हम HTML और CSS से ही बनाते हैं. तो हम HTML से अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन उसको अट्रैक्टिव नहीं बना सकते. और CSS हम अप्लाई ही अपने HTML एलिमेंट्स पे करते हैं. तो जब भी हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे हम HTML से कंटेंट शो करते हैं. जैसे कि आप हेडिंग्स दिखा सकते हैं, पैराग्राफ्स दिखा सकते हैं और उन एलिमेंट्स को आप स्टाइल करते हैं CSS से. अब मैं आपको दिखाती हूँ PIAIC की ऑफिशियल वेबसाइट और इसके डिफरेंट सेक्शंस और कंटेंट को रिव्यू करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि नेविगेशन बार है, जहाँ पर हमें कुछ लिंक्स नज़र आ रहे हैं. ये वेबसाइट के मेन पेजेस हैं जो बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं, ताकि यूज़र को एक्सेस करने में आसानी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अप्लाई का लिंक है, ताकि स्टूडेंट्स को क्विकली और इजीली एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेस कर सकें और उनको आसानी हो. इसी तरह से अवेलेबल प्रोग्राम्स का सेक्शन है, जिसमें ड्रॉप डाउन भी है, ताकि स्टूडेंट्स क्विकली डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन रीड कर सकें. नेक्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर RFLV की पिक्चर है और कुछ टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो रहा है जो एनिमेटेड है. इसके साथ अप्लाई का बटन भी है, ताकि स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म मिस नहीं कर सकें. इसके बाद इसके नीचे वाला अगर आप सेक्शन देखें तो ये अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं. ये सारे अवेलेबल प्रोग्राम्स आपको नज़र आ रहे हैं. इसके बाद वीडियो का सेक्शन है और फिर
यहाँ कुछ इमेजेस हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ ये जो सारा कंटेंट है और उसके लेआउट्स हैं, प्रेजेंटेशन है, ये सब CSS से कंट्रोल्ड है। तो without CSS all of this will be bare bone text only without any of the aesthetically pleasing visuals। तो अब हम CSS को डिसेबल करके चेक करते हैं कि how will this page look without the CSS। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गूगल क्रोम का एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल किया है जिससे CSS डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ हम डिसेबल ऑल स्टाइल्स को क्लिक करेंगे और देखते हैं कि आउटकम क्या होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेविगेशन बार डिसअपीयर हो गया और सिर्फ टेक्स्ट लिंक्स रह गए हैं। ये अप्लाई का लिंक है और अवेलेबल प्रोग्राम के लिंक्स इस तरह यहाँ पर हैं। अगर आप फर्दर स्क्रॉल करें तो हमें नेक्स्ट सेक्शन का कंटेंट नज़र आएगा। ये देखें जो एनिमेटेड टेक्स्ट आ रहा था वो भी अब प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में शो हो रहा है और अप्लाई का बटन भी सिंपल लिंक टेक्स्ट नज़र आ रहा है। So now you can see the entire layout and the presentation of the page has become totally unappealing. Now if we again enable the CSS, our page will return to its normal form. CSS is a reformatting language for web pages. HTML is a structural language for web pages and used to describe the structure of a web page. CSS is a presentational language for web page and used to describe the presentation of a web page. Definition: the standard markup language for describing the structure of web pages. A style sheet language for describing the presentation and design of web pages, including colors, fonts, and layouts. For content and structure of web pages, mainly for presentation and design. Architecture: being the standard markup language for creating web pages, HTML uses tags that contain content. Selectors are declared using block statement syntax. Dependency: HTML syntax and structure formats can't be used with CSS style sheets. CSS is independent of HTML and it can be used with any XML-based markup language. Approach: mainly used to develop the basic content of any web page. Mainly implemented for web designing, page style, formats, layouts, and other visual effects. Support: there is a lot of community support for HTML which helps to utilize different web page structures that are standards across industries. CSS also has huge community support for continuous web designing improvements as per the current standards. The term cascading derives from the fact that multiple style sheets can be applied to the same web page. These style sheets are a collection of style rules that tell the browsers how the various styles are to be applied to the HTML tags to present the document. So the style rules defined in the cascading style sheets can be applied to the basic HTML elements. The style sheets are called cascading style sheets because they let us selectively override previously defined styles. For example, अगर हमारी वेबसाइट की स्टैंडर्ड जो स्टाइल है उसमें अगर बैकग्राउंड आपने वाइट दिया है और हमें कुछ पेजेस में बैकग्राउंड चेंज करना हो तो उसके लिए हम एडिशनल स्टाइल शीट से स्टैंडर्ड स्टाइल को ओवरराइड कर सकते हैं. तो
CSS is a language that is used to describe the style of an HTML document. CSS is used to describe how HTML elements should be displayed. So, using a collection of style rules, CSS is like the beauty kit for web pages. CSS is used to add aesthetically pleasing effects on HTML documents to make them more attractive. So HTML is a structural language used to create the structure of web pages, while CSS is a presentational language that is used to make web pages attractive. HTML and CSS help us to create well-designed websites. CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जहाँ एम्फेसिस जो सारा है वो स्टाइल पर है, जबकि HTML हम यूज़ करते हैं आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, जैसे कि हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, एम्बेडेड इमेजेस हैं और वीडियोस। तो CSS हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट के स्टाइल को डिफाइन करने के लिए, जैसे पेज लेआउट्स हैं, कलर्स और फॉन्ट्स वगैरह। आप इस तरह से समझें कि HTML फाउंडेशन है, जैसे हर घर की फाउंडेशन होती है, और CSS एस्थेटिक चॉइसेस हैं, जैसे कि किसी घर में विंडोज़ का क्या साइज़ है, पेंट कौन सा है और फ्लोरिंग कैसी है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि HTML और CSS दोनों साथ में मिलकर ही काम करते हैं। CSS से आप डिज़ाइन एस्थेटिक्स, डिज़ाइन प्रिंसिपल, स्टाइल्स और इफेक्ट्स HTML वेब पेजेस पर ऐड करते हैं, लेकिन सिर्फ HTML और CSS से हम ज़्यादा इंटरैक्टिव, डायनामिक और रियल टाइम वेबसाइट्स नहीं बना सकते। जैसे कि हम HTML एंड CSS में गेम्स नहीं बना सकते। तो इसलिए जो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है या PHP है। जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं इंटरैक्टिव, डायनामिक और रियल टाइम वेब पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए। When working with CSS, it is easiest to think about everything in the HTML as boxes that we want to make pretty. CSS को समझने के लिए आप इमेजिन करें कि हर HTML एलिमेंट को एक इनविजिबल बॉक्स में रखा हुआ है, और ये HTML बॉक्सेस या एलिमेंट्स हम CSS से स्टाइल कर सकते हैं। CSS से हम ऐसे रूल्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप कंट्रोल करें हर इंडिविजुअल बॉक्स या उस बॉक्स के कंटेंट को कि वो किस तरह से आपको नज़र आए। तो अब आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। इस एग्जांपल में जो बॉडी एलिमेंट है, सो यू कैन सी द बॉडी एलिमेंट क्रिएट्स द फर्स्ट बॉक्स, देन देयर इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट विद 4 list items that each create their own boxes within it. Then there is an H1 element followed by a P element. As you can see in this example, the body element creates the first box, then there is an unordered list with 4 list items that each create their own boxes within it. Then there is an H1 element followed by a P element. So using CSS, you could add a border around any of the boxes, specify its width and height, or add a background color. You could also control text inside a box, for example, its color, size, and the typeface used.
अब हम समझ गए कि CSS क्या है. CSS is a collection of style rules. CSS is a presentational language to separate structure of a web page from its presentation. अब हम styles की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखें कि स्टाइल का मतलब क्या होता है. स्टाइल मीन्स distinctive appearance. So in CSS, style means to distinguish one element from other elements. For example, अगर हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें तो हर एक का स्टाइल डिफरेंट होगा जो कि यूनिक है. तो स्टाइल से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. किसी का हेयर कट डिफरेंट है, किसी पे कोई कलर सूट करता है, किसी पे कोई हेयर कट सूट करता है एंड सो ऑन. तो अगर स्टाइल में डिफरेंसेस ना हो तो तकरीबन सब लोग आपको एक जैसे नजर आए. तो इसीलिए हम अगर आप जनरली लोगों को भी देखें तो सबका स्टाइल, सबका अपीयरेंस, सब कुछ डिफरेंट होता है. इसी तरह से HTML एलिमेंट्स को भी आप अलग तरीके से दिखा सकते हैं और उनकी अलग तरह से सबकी स्टाइलिंग कर सकते हैं और वो स्टाइलिंग हम CSS से करते हैं. लेकिन अगर आप अपने वेबसाइट के हिसाब से सोचें तो to distinguish one element from other elements, what we normally do, we apply color, we change the font size, sometimes we put borders around the content, we give background color to the content to highlight it, and we give different border styles. So if HTML is the foundation, frames, walls and girders supporting your website, consider CSS the paint, color, window, styles and landscaping that comes on afterward. You can get anywhere without putting that foundation up first, but once you do, you will want to follow up with some style, and CSS is the ticket to unleashing your inner decorator. In CSS, we have many style rules. As we know, CSS has a collection of style rules. So what are those style rules? Cascading style sheet का सारा जो emphasis है वो style पे है. Styles are properties in CSS. So to create a style rule, first we write a style name or property name, and then we can assign a value to a property name or style by using a colon. We don't use an equal sign with property or style to assign a value. In CSS we use colons and like this, and at the end we write semicolon. This indicates declaring a style rule. So CSS works by associating style rules with HTML elements. These rules govern how the content of specified elements should be displayed. A CSS rule contains two parts, a selector and a declaration. तो यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. P आपका पैराग्राफ है और कलर यहाँ आपने स्पेसिफाई कर दिया है ग्रे. तो ये रूल हमें बता रहा है कि सारे P एलिमेंट्स या सारे पैराग्राफ आप ग्रे कलर में नजर आएंगे. सेलेक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि कौन से एलिमेंट पर रूल अप्लाई करना है. तो सेलेक्टर्स आपके HTML एलिमेंट्स ही होते हैं जिन पे आप रूल अप्लाई करते हैं. हम सेम रूल एक से ज़्यादा एलिमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और एलिमेंट नेम को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. अच्छा, CSS and declarations indicate how the elements referred to in the selector should be styled. Declarations को हम split करते हैं दो parts में.
प्रॉपर्टी और वैल्यू में, और एंड सेपरेटेड बाय अ कॉलन। तो डिक्लेरेशन को आप स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, प्रॉपर्टी और वैल्यू, और प्रॉपर्टी और वैल्यू को आप सेपरेट करते हैं कॉलन से। तो CSS properties affect how elements are displayed. So CSS declarations sit inside curly brackets and each is made up of two parts, a property and a value separated by a colon. You can specify several properties in one declaration, each separated by a semicolon, like this. So this rule indicates that all H1, H2 and H3 elements should be shown in the Arial typeface and in a yellow color. So property indicates the aspect of the element you want to change. For example, color, font, width, height and border. Value specify the settings you want to use for the chosen properties. For example, if you want to specify a color property, then the value is the color you want the text in these elements to be. अब हम CSS स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी सीखा कि CSS वर्क्स बाय एसोसिएटिंग रूल्स विद HTML एलिमेंट्स, मतलब हम CSS रूल्स जो भी हैं या जो भी CSS स्टाइलिंग है वो हम अप्लाई ही अपने HTML एलिमेंट्स पे करते हैं। अच्छा, यही वो रूल हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस तरह का नज़र आए आपको। वही रूल्स बताते हैं कि कैसा आप अपने एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट को किस तरह दिखाना चाहते हैं। तो CSS रूल कंटेन्स टू पार्ट्स, अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन। तो अब हम देखते हैं कि सेलेक्टर क्या है, डिक्लेरेशन क्या है। एक छोटी सी एग्जांपल बना लेते हैं। ये हमने एक फाइल क्रिएट किया। टाइटल दे देते हैं CSS रूल्स। अच्छा, सबसे पहले अब मैं एक हमने करना क्या है, हमने पहले HTML डॉक्यूमेंट बनाना है, क्योंकि उस पे ही HTML एलिमेंट्स पे ही हम CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग H1 अभी यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, अब ये रन करके देखते हैं। तो अभी आपको ये नॉर्मल एक हेडिंग नज़र आ रही है। अब मैं इस पे CSS अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि ये जो फॉन्ट कलर अभी हमें ब्लैक नज़र आया था वो हमें मीडियम ब्लू कलर में नज़र आए। तो अब मैं क्या करूँगी, हेड में, हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग होता है। अब यहाँ मैं बताऊँगी, सबसे पहले मैं लिखती हूँ H1। H1 क्या है, हमारा HTML एलिमेंट था। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये वाला जो H1 है, ये जो हेडिंग है, इसका ये यहाँ जो ये फॉन्ट हमें अभी ब्लैक नज़र आ रहा था ये ब्लू हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने बताया कि H1 एलिमेंट पे मैंने रूल अप्लाई करना है। तो जो HTML एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं सेलेक्टर, यानी कि जिन पे हमें रूल अप्लाई करना है। तो सेलेक्टर आपके HTML एलिमेंट्स होते हैं। अब क्योंकि CSS रूल के दो पार्ट्स हैं, एक सेलेक्टर और एक डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन याद रखें हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में होंगी, कर्ली ब्रैकेट दिए। अब यहाँ मैं बताऊँगी, डिक्लेयर करूँगी कि मैं क्या, कौन सा रूल अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो हेडिंग है इसका कलर मीडियम ब्लू हो जाए।
तो मैंने क्या किया, कलर लिखा और कॉलन दिया और फिर मैंने बताया मीडियम ब्लू, जो भी मैं कलर चाहती हूँ, जिस कलर की भी हेडिंग। अच्छा, ये जहन में रखें। अब CSS रूल्स के दो पार्ट हैं, एक सेलेक्टर यानी कि सेलेक्टर वो HTML एलिमेंट्स जिन पे रूल अप्लाई करना है, और डिक्लेरेशन जो रूल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। डिक्लेरेशन हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में होंगी। अच्छा, डिक्लेरेशन को भी स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट में, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, वो कलर है जो आप जैसे कि कलर आपने अप्लाई करना है तो कलर यहाँ प्रॉपर्टी है, और जो कलर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ये उसकी वैल्यू है। तो हम प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करते हैं कॉलन से। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ, अच्छा अब वापस कोड पर आते हैं। जिस तरह से हमने एक कलर, अब ये रूल मैंने अप्लाई किया, अब मैं चाह रही हूँ, अब मैं HTML डॉक्यूमेंट पे पहले तो काम करती हूँ। अब मैं दो हेडिंग्स और बनाऊंगी, एक H2 और H3। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ पहले, अब अच्छा इसको रन करके देखते हैं। अब देखें यहाँ जो कलर है वो जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो ब्लैक है। यहाँ हमने पहले CSS अप्लाई किया था इस वाली हेडिंग पे, यानी कि H1 पे। अब मैं चाह रही हूँ H2 और H3 का कलर भी मैं ब्लू कर दूँ, जो कि अभी ब्लैक है। और मैं चाह रही हूँ कि ये जो फॉन्ट्स हैं ये फॉन्ट भी चेंज कर दूँ, अपनी मर्ज़ी का दूसरा फॉन्ट यूज़ करूँ। तो अब देखें किस तरह से हम करते हैं। अब मैंने क्या किया, ये होते हैं आपके सेलेक्टर जिन पे रूल अप्लाई करना है। तो हम मल्टीपल सेलेक्टर्स भी दे सकते हैं जिन पे आप सेम रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ H2 और H3 बनाई थी, तो H2 और H3 भी लिख देंगे। मल्टीपल सेलेक्टर्स को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। और अब मैं चाहती हूँ कि मल्टीपल डिक्लेरेशन भी दे दूँ। अच्छा, पहले इसको रन करके देखते हैं। तो अगर आप सेम रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स पे, तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब आप मल्टीपल सेलेक्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जिस तरह मल्टीपल सेलेक्टर्स हो सकते हैं, इसी तरह हम मल्टीपल डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। तो अभी हमने एक ही रूल स्पेसिफाई किया था। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन कर दूँ, यानी कि तीनों हेडिंग्स का H1, H2, H3 मैं चाह रही हूँ कि नज़र आए टाइम्स न्यू रोमन में। तो यहाँ पर तीनों का फॉन्ट भी चेंज हो गया। अब देखें तो हमने क्या देखा कि आप मल्टीपल सेलेक्टर्स भी दे सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं कॉमा से। डिक्लेरेशन हमेशा होती हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। दो पार्ट्स हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं कॉलन से। और अगर आपने मल्टीपल डिक्लेरेशन दिए हैं, मल्टीपल रूल्स आप दे रहे हैं, तो उसको हम सेपरेट करते हैं सेमी कॉलन से।